Good afternoon, everybody. Namaskar, Santosh. How are you doing? You can unmute. We can. There are as people are joining in. We see that a lot of people are coming in. Thank you very much. Thank you very much. People are coming in. Do I have Rajendra Benivale on the line, please? Do I have Rajendra Benivale on the line? किधर है 75 Hello, Yes. sir, Rajendra here. Okay, Rajendra, thank you very much for joining in. I think we are 6 minutes late and we're not going to waste more time. People have already joined in and people are joining in. I'm sure by the time people will reach, the links will be start flowing because our last webinar, which was an awesome hit, Dr. Anshul Dingra was there on managing teams. I hope Mr. Jha, Ajit ji has joined and Gandhi also would have joined. I think Mr. I'll just text him to join. Give me 1 minute. Sure. No problem. Okay. So meanwhile, people who are joining for the first time, I have some new names. I have Ashok Jain. I have Asmita Karandikar, Amarnath ji. Would you be able to kindly share with us on the chat groups your name, your business name, um, your which is your company name, of course, the kind of business that you are in, and of course, what is that one typical question you would want to ask that you would need to have answers on this. So go ahead and write down these answers quickly. My name is Dr. Yogesh Pawar. I'm the founder of School of Inspirational Leadership and chairman for the Association of Rising and Inspiring Syndicate of Entrepreneurs. We started this NGO 3 years back, and the NGO is growing. I'm very happy about the fact that now, because of people across the country are joining us on various webinars, the goal that we have together as Arise, which is NGO and School of Inspirational Leadership, is very simple: to spread right knowledge through right people like Mr. Jha, who is the general manager for SEDBI and heads the Maharashtra division. We also have Mr. Gandhi, who's going to join us. Mr. Gandhi comes with a huge experience of, and I'm going to share that with all of you, of what Mr. Gandhi is doing. He is the elected president for Western Maharashtra Chamber of Commerce, Industries, Agro and Education. He is also vice president of Maharashtra Chambers of Commerce and Industries. So a big man who's going to be there in a short while with us. And I'm sure जब ये दोनों भी वहाँ पे रहेंगे, we will have a great amount of good understanding about how the industry is working. Thank you, Vishal ji. Thank you, Krishna Karad, joining in from Turuvar Horticulture Private Limited, Mumbai. We are in landscape and horticulture. Perfect. We have Mr. Mali, who is from Shivam Engineers, Pune. We have Balaji. Balaji, please let us know what are you into. Mr. Amarnath Patil, Chairman of Electrical Contractors Association of Maharashtra. Wonderful.
Welcome, Mr. Patil. It is definitely a pleasure to have you here. I'm sure Inspiring India movement, we all can work together and really come together as all the associations for the betterment of the country, because we need to keep that in course. I'm sure you will add a lot of value as we move in forward. We have Ajay Kulkarni, who is outsourcing of PMOs and lean organization and price performance. Okay. We have myself, Anil Mahajan, proprietary of Samarth Electrical Contractors. Okay. Good afternoon. We have Namdev Gore from Subhadra Industries, Nanded, Fata, Pune. Premraj Chavan, he's Midas Metrology Solutions. Okay. Um, and this is, I think this is an awesome thing that's happening. Uh, that we are having people across lot of industries. Lot of industries. I'm yet to receive questions from people. There is a question poll that already exists. I'm yet to receive that. Can I request the host to make me the host so that I can activate the question poll for people? Okay. Perfect. So I'm the host now. Uh, Okay, I have Vivan Rajendra Sinanskar, Director CEAM. Rajendra ji, I would recommend you to tell me what kind of business is it, what kind of work that you're doing. Myself, Santosh from Saurav Ads. Okay, welcome Santosh to the webinar. Icon Precisions is Manish, I know you, so thank you very much for joining in. It's a pleasure to have you on board here. We have already crossed 117 people now on this, and I'm sure in the next 5-7 minutes, as the doors closed, CA Ashok Jain and runs largest Pune-based insurance brokerage company. Wonderful, very nice. Ashok ji, thank you very much. Includes some of the largest companies in Pune and other parts of the country. Sunil Gosavi, Yash Plasto Electric, Pune Manufacturing, Plastic Injection Molding. Wonderful, thank you very much. We have people who are joining in very fast. We have I would want people to add on, and we now have people who have joined in, and I think we are 123 people here. So okay, so can I know if Mr. Gandhi has joined in? That's what the intimation here is. Mr. Gandhi, Lalit ji, Yes, namaskar. yes. Namaskar, namaskar. It is so I'm so happy that on a short notice you could make up, and I'm thankful to you. Can I have you on the screens, please? Thank you. My Thank you, video is Gandhi. on. Thank you very much for joining in. Thank you you. very much for joining in. Rajendra, I also want to know if Jha Saab has joined in. Yes, Mr. Jha, you're already there. I see your name. So thank you very much. So it is time for us to start off. Mr. Jha, thank you very much for joining in. It's a pleasure to have you on board. Yeah, thanks. Thank you very much. It gives us a good platform. So thanks for inviting. Yogesh sir, I'll take 1 minute before you start. Sure. Yeah, I am really thankful to Mr. Jha for accepting our invitation on a very short notice. I have seen his schedule. He has been addressing entrepreneurs across Maharashtra. I have seen his schedule of addressing entrepreneurs in Nasik region, Ahmednagar, Pune. Consistently, he is on webinars. Consistently, he is addressing the issues of entrepreneurs during this COVID pandemic. And a special thank to Mr. Lalit Gandhi. Initially, for Inspiring India movement, he was a person who motivated us. We couldn't meet him when I was in Kolhapur, but a very big thank to him for accepting to be our guest of honor today on a very short notice.
On a morning, I was just having a chat with him. I requested him, and he accepted. And along with that, he accepted to be associated with this month's theme, that is Liquidity Unlimited, wherein bankers will be participating and answering the queries of entrepreneurs. From my side, thank you very much to everyone. Over to Dr. Yogesh. Thank you. Let me take the honors quickly to introduce our guest of honor first today. Mr. Lalit Gandhi happens to be the president of Western Maharashtra Chamber of Commerce, where Agro and Education. He's also senior vice president at Maharashtra Chamber of Commerce and Industries. He's a national executive member to FICCI. He's also the national managing committee member for Association Chambers. National Vice President for Confederation of All India Traders. And he was a part, by the way, let me tell you, of Narendra Modi ji's delegation to Africa. He was a part of delegation where President of India, Ramnath Kovind ji, official delegation to Greece, and the President of India, which was Pranab Mukherjee ji, the delegation to Sweden. So we have this awesome opportunity for him, for all of us, that we can listen to him. And we also have Mr. Jha here. Mr. Jha happens to be the general manager for SIDBI, working relentlessly. So the other day when I was talking to him, I saw an amazing amount of dedication that he was displaying in terms of helping SMEs to move forward. So thank you very much, Mr. Jha. Thank you very much, Mr. Gandhi. I would want Mr. Gandhi to throw a little light today, maybe in the next 5-7 minutes, to tell us how is the COVID situation looking and how should Maharashtra entrepreneurs work on it. What are the various associations that you are a part of, sir, that you're working with? And first of all, my humble gratitude towards you supporting us in the Inspiring India movement. So thank you very much from the bottom of my heart. Thank you, Yogesh ji. Which language is okay? Hindi, Marathi? Hindi, Marathi, English, all is okay. मी थोडंसं इंग्लिश मध्ये बोललो, पण आपण मराठी हिंदी मध्ये बोलू शकतो. ऍब्सोल्युटली नॉट. येस. योगेश जी, खरं तर मला अतिशय आनंद वाटला या तुमच्या अतिशय इनोव्हेटिव्ह अशा इन्स्पायरिंग मोमेंट मध्ये तुमच्या सोबत एकत्रित काम करण्याचा निर्णय घेऊन आणि या देशाच्या विकासासाठी तुम्ही जे डेडिकेटेडली काम करताय ते बघून मला खरोखर आनंद झाला. महाराष्ट्रातील मराठी माणूस देशाच्या विकासासाठी ज्यावेळी काम करतो ते नक्कीच देशासमोर एक चांगला आदर्श निर्माण करू शकतो, हे आपण नेहमीच बघितलेलं आहे. मला खात्री आहे योगेशजी, तुमची ही मोमेंट सुद्धा या देशाला नक्कीच मदत करेल विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी, आपल्या सर्व उद्योजकांना आणि सगळ्यांनाच. आणि तुम्ही लिक्विडिटी अनलिमिटेड ही जी थीम घेतली आहे, खरोखर आजच्या घडीची सर्वात महत्वाची आणि आवश्यक अशी बाब आहे. 25 तारखेला आपलं लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर रोज आम्ही 2 VC कुठल्या ना कुठल्या ऑर्गनाईज करतोय, बोलतोय. सगळ्या सेंट्रल मिनिस्टर्स असतील, ऑफिसर असतील, ट्रेड इंडस्ट्रीचे लीडर असतील. आणि एक गोष्ट प्रॉमिनंटली आमच्या समोर आली की प्रत्येकाची एक डिमांड कॉमन होती की लॉकडाऊन नंतर आम्हाला लिक्विडिटीचा प्रॉब्लेम येणार आहे, आम्हाला वर्किंग कॅपिटलची गरज असणार आहे. आणि हे वर्किंग कॅपिटल आम्हाला काही जणांची, मेजॉरिटी लोकांची अपेक्षा आहे की 1 वर्षासाठी बिनव्याजी मिळावं. आता ते शक्य होईल माहित नाही, गव्हर्नमेंट इंटरेस्ट सबमेन्शन करेल का नाही करेल माहित नाही. काल अनुराग ठाकूर होते 2 दिवसापूर्वी, फायनान्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट, त्यांनी स्टिम्युलसच्या पॅकेजवर आता फायनलायझेशन करण्याचं चालू आहे, सांगितलं 1-2 दिवसात ते डिक्लेअर होणं अपेक्षित आहे. तर काहीतरी मेजर स्टिम्युलस मिळेल, पण ऍटलिस्ट सबवेन्शन व्हावं, फ्री ऑफ इंटरेस्ट तर मिळणार अशी अपेक्षा नाही, आपण मागणी करतो आपण. पण एक आपल्या आता एक्झिस्टिंग लिमिटच्या किंवा टर्नओव्हरच्या 20% एवढी ऍडिशनल लिमिट आपल्याला इमिजिएट मिळाली पोस्ट लॉकडाऊन. बऱ्यापैकी इंडस्ट्री आपण आता सुरू केलेली आहे, ऑलमोस्ट 40-50% इंडस्ट्री सुरू झाली. तर ह्या सगळ्यांची मेन आवश्यकता जी आहे ती आम्हाला इझिली ऍडिशनल कॅपिटल ताबडतोब मिळावं. मोठा प्रॉब्लेम आमच्या समोर आहे वर्कर्सच्या पेमेंटचा. लॉकडाऊनच्या पिरियड मधल्या अजूनही वर्कर्सचं मायग्रेशन मोठ्या प्रमाणात रिमायग्रेशन होत आहे, त्यांच्या नेटिव्ह प्लेसला जाता येता एक मोठा इश्यू आपल्यासमोर तयार झालेला आहे. हे लोक परत कधी येतील, गेलेले सगळे परत येतील का नाही, हा एक मोठा चॅलेंज आपल्यासमोर आहे. आणि या सगळ्यांचं काम चालू नसताना सुद्धा पेमेंट कसं करायचं, आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे एक स्ट्रॉंगली रेकमेंड केलेलं आहे की ESIC-ने ऍटलिस्ट 50% 70% काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट त्यामध्ये केलं पाहिजे, का आता आम्हाला गरज आहे. कारण आता सगळ्यांना शक्य नाही सॅलरी देणं कुठलीही ऍक्टिव्हिटी चालू नसताना.
बऱ्याच जणांच्याकडे कॅपिटल अवेलेबिलिटी नाही, द्यायची इच्छा असली तरी त्यांच्याकडे आता पैशाची उपलब्धता नाही. या सगळ्या गोष्टी आपण आग्रहानं सरकारकडे मांडल्या आहेत. कोविड-19 एक आपल्याला शिकवलेलं आहे की आपल्याला आपल्या सिस्टम मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागणार आहे. आणि हे जसं आपल्यासमोर संकट आहे तशी आपल्याला एक मोठी अपॉर्च्युनिटी सुद्धा आहे. त्यात चायना हा ग्लोबल लेवलवर विलेन म्हणून पुढे आलेला आहे. तर चायनामध्ये मोठ्या प्रमाणात तिथल्या इंडस्ट्री ज्या बाहेरच्या आहेत, जपानच्या असतील, कोरियन असतील किंवा अमेरिकेच्या असतील, त्या मोठ्या प्रमाणात इथून रिलोकेट होणार हे आता निश्चित आहे. जपाननं तिथल्या इंडस्ट्री रिलोकेट करण्यासाठी $2 बिलियन पॅकेज जाहीर केलेलं आहे. आणि या सगळ्या सिनारिओमध्ये एशियन कंट्रीजमध्ये मोठ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. त्यामध्ये भारत हा अप्पर हँड मध्ये आहे अपॉर्च्युनिटी देण्यासाठी. आणि गेले 8-10 दिवस पीएमओ आणि आमचं सगळ्यांचं इंटरॅक्शन सुरू आहे की भारतानं नेमकं काय करायला पाहिजे, की काय इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण देऊ शकतो, यांना कसं रेड कार्पेट देऊ शकतो की ह्या इंडस्ट्री आपल्याकडे येतील. आणि जशा मोठ्या इंडस्ट्री आपल्याकडे येतील तशा एन्सिलरी इंडस्ट्रीना मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे काम मिळणार आहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होणार आहे. हा एक मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. आपल्याला सबसिडरी बाकीच्या इंडस्ट्री त्या प्रमाणात सुरू करता येईल. एक मोठी गोष्ट एमओएस फायनान्सने परवाची सांगितली की आम्ही नक्की या बाहेरच्या देशातल्या कंपन्या आणण्यासाठी प्रयत्न करतोय, परंतु आमची प्रायोरिटी या भारतीय कंपन्या ज्या आमच्या आहेत, भारतीय उद्योग जे आहेत, छोटे उद्योग जे आहेत ते एम्पॉवर कसे होतील, त्यांना आता सस्टेन कसं करायचं ही आमची पहिली प्रायोरिटी आहे. त्यांनी एक पॉझिटिव्ह सिग्नल यातून दिलेला आहे की काहीतरी गव्हर्नमेंटची मानसिकता या सगळ्या सेक्टरला चांगल्या पद्धतीने सपोर्ट करण्याची आहे. तेव्हा मला खात्री आहे या संकटातून आपण बाहेर पडू आणि अधिक चांगल्या पद्धतीनं पुढे जाण्यासाठी आपण कार्यरत राहू. ज्या आपल्यामध्ये त्रुटी आहेत किंवा आपल्याला लक्षात आलेलं आहे की या सगळ्या पॅन्डेमिक मध्ये आपण कमी कुठं पडतोय किंवा आपल्याला बाहेरच्या इंडस्ट्री येण्यामध्ये आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये काय ड्रॉबॅक्स आहेत किंवा सिस्टम मध्ये काय लॅक्यून आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी सुधारण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऍज सच प्रयत्न करते. परंतु इंडस्ट्री आणि गव्हर्नमेंट या सगळ्यांनी हँड टू हँड काम करणं ही आजच्या पिढीची सगळ्यात मोठी आवश्यकता आहे. मी बरेच विषय आहेत बोलण्यासारखे, मी फार वेळ घेणार नाही. झा साहेबांचं सुद्धा मी यामध्ये स्वागत करतो. आणि आम्ही सगळ्यांनी सिडबी कडून फार मोठ्या अपेक्षा, झा साहब को मराठी समझ में आती होगी सर. काही लोकांची रिक्वेस्ट, काही लोक गुजरातमधून पण जॉईन झालेली आहेत. देयर आर पीपल हु हैव जॉइन्ड फ्रॉम गुजरात एंड अदर पार्ट ऑफ द स्टेट्स. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हिंदी और इंग्लिश. हिंदी ओके. ओके झा साहब, पिछले काफी दिनों से हम काफी लोगों ने विभिन्न सेगमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंसिस्ट किया है कि सिडबी का फाइनेंस हमें डायरेक्टली अवेलेबल हो. तो रीफाइनेंस के सेक्टर में जाके आने से हमारे लिए कॉस्ट बढ़ती है और मुद्रा का इम्प्लीमेंटेशन भी सिडबी के थ्रू हो. ऐसे 2-3 मेजर डिमांड्स हमने पर्टिकुलरली सिडबी के लिए गवर्नमेंट के पास और फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी रखी है. तो हमें आपसे भी बहुत सारी जानकारी लेनी है. आज तो मैं इनिशियल टॉक में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि इंस्पायरिंग इंडिया अराइज मूवमेंट एक हमारे लिए एक पॉजिटिव स्टेप है. योगेश जी और उनकी पूरी टीम में, राजेंद्र जी है, सभी ने लिया है. और ये इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट हम सभी इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए निश्चित ही बहुत ही कारगर साबित होगा. ये सीरीज जो हमने अराइज के माध्यम से आपने शुरू की है, लिक्विडिटी अनलिमिटेड, तो निश्चित ही हमारे इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड साबित होगी और हम सब मिलके इस दिशा में आगे काम करेंगे. वेस्टर्न महाराष्ट्र चैम्बर और हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एमएसएमई सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमारा पूरा सहयोग हमेशा इसके साथ रहेगा, इसका एश्योरेंस देता हूँ. मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स को यही समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू ललित जी, थैंक यू वेरी मच. योगेश जी हमारे साथ महाराष्ट्र चैम्बर की वाइस प्रेसिडेंट शुभांगी फिरोडकर मुंबई से, वो भी जुड़ी हुई है आज हमारे सेमिनार में. और भी काफी लोग जुड़ रहे हैं, कोई प्रोमिनेंट और भी होंगे, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा. शुभांगी जी धन्यवाद इस वेबिनार में आने के लिए. ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है. हम काफी यंग संस्था है, 3 साल बस अभी शुरू होने से हुए हैं और सही धोरण के साथ आप सबके मदद के साथ आगे जाना चाहते हैं. एंड आई एम श्योर जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप बड़ों का आशीर्वाद हमेशा रहेगा. ये हमेशा ध्यान में रहेंगे. तो जहां पे भी अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करें इस वेबिनार में. बट जैसे कहते हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ों ने उसकी साथ देनी चाहिए. तो वही धन्यवाद देके सारे बड़ों से, सारे
आशीर्वाद लेना चाहूंगा ताकि हम ये अच्छा काम आगे लेके जा सके. So thank you very much Lalit ji once again for joining us. अब मैं झा साहब के साथ कुछ कुछ बातचीत करना चाहूंगा. झा साहब कुछ चीजें हैं. First of all, welcome once again to all the members who are here. There are close to 155-60 members who are here. Thank you very much everybody to join in this movement. The goal that we have is to inspire people with right products, right systems, right policies, right business leaders, talking to them who can take the businesses and show us a path towards more positivity rather than feeling bad about the state. I feel personally it is a greatest opportunity that all businesses have got, because I have been a strategic consultant to almost 300 companies till now, and I believe this is the great opportunity to turn around businesses. Okay, क्योंकि हर business को ऐसी opportunity बार-बार नहीं मिलती. And if you really look at history, it says जो कंपनियां नीचे से ऊपर जा पाई है वो ऐसी ही situations में legacy create कर पाई है. So it is a great opportunity. झा साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या initiatives हैं जो MSMEs ने जाननी बहुत जरूरी है जो SIDBI ले रहा है, because at the end of the day SIDBI is working for the business community to grow. So on to you, Jha sahab. Yeah, thank you, Mr. Gandhi. Thank you, Pawar sir. And I'm really thankful to Inspire India Leadership that we have been given this platform to talk to you. So while we are busy in our daily jobs, but as you rightly said, Dr. Pawar, this is a good opportunity, because when times were normal, we didn't meet in webinar, whereas it was possible to meet even at that time. But nevertheless, this is a good opportunity. Thank you so much. SIDBI, as I'm sure most of the MSMEs would be aware, we are in the business of promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises. So we set up around 1990. So it's been quite some time that we have been there, and as Gandhi, Mr. Lalit Gandhi ne kaha, most of the time we were in a refinancing institution, and the reason was that because there were already so many financiers in the field of financing, both MSMEs as well as the large corporates. And SIDBI's job was to do more of the refinancing activity, that is getting funds at cheaper cost from various institutions, including government, from abroad, multilateral institutions, and channelize into specific targeted fields. So that was what we had been doing right from inception till some time. Then SIDBI came into this Vision 2.0 in 2017-18, where we said that we'll also be getting into some of the areas with a focus and create a niche in the market for certain products, come with the, identify the gap in the system, come with a product, demonstrate that the product is working, so that there are other institutions who can then take it forward. The idea was never to compete with any of the banks. The idea was to create, do a gap analysis and create and identify a niche and make the product functional. So in the last 3 years, we've been looking at doing a large number of things, some of which I'll try to cover and which are quite relevant today. So coming to the COVID situation, which is bothering most of us at the entrepreneurship level, at the banking level, at the institutional level, at association level. I have a request. I'm so sorry. I have a request कि आप थोड़ा हिंदी में बात कीजिए. Okay. So thank you. No, that's fine. So अभी जो हम लोग एंटी कोविड फाइट करने की कोशिश पूरा देश कर रहा है, तो इस समय जो प्रोडक्ट्स हमारे उस फाइट में ज्यादा रेलिवेंट हो पाएंगे, उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करेंगे तो, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स आज की डेट में बहुत रेलिवेंट थे. जैसे अभी हमने 22-23 मार्च को लेटेस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको हमने कहा सेफ.
ये उन इंडस्ट्रीज के लिए था जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे या इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते थे जो कोविड की लड़ाई में हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे डॉक्टर्स को मदद करती थी, जैसे सैनिटाइजर्स हो गए या पीपीई जिनको कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये एक एग्जांपल था निश क्रिएट करने का, एक गैप आइडेंटिफाई करने का। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकली नहीं था। रिक्वायरमेंट थी कि लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं जा सकते थे, तो प्रोसेसेस भी इस तरह से लाने थे आईटी के माध्यम से कि हम इसकी डिलीवरी भी जल्दी से करा पाए। और साथ में बिकॉज लार्ज वॉल्यूम्स थे तो वर्किंग कैपिटल के नेचर में भी फंडिंग चाहिए थी और कैपेक्स के नेचर में भी फंडिंग चाहिए थी। तो हम लोगों ने, सिडबी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको हमने सेफ कहा। दिस वाज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19। और इसके अंदर हमने कहा कि कोई भी एमएसएमई इसमें फाइनेंस उठा सकती है और इसमें इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने बहुत ही मिनिमल रखा था, 5%। और इसमें कैपेक्स भी फंड हो सकता था, वर्किंग कैपिटल भी फंड हो सकता था। और मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि 23-24 मार्च को लॉन्च किया हुआ ये प्रोडक्ट आज की डेट में हम लोग करीब 200 एमएसएमईज ऑल अक्रॉस द कंट्री कवर कर चुके हैं। और महाराष्ट्र मेरा क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र में हम लोग 40 से ऊपर ऑलरेडी एमएसएमईज को इसमें कवर कर चुके हैं। और ये एमएसएमईज अलग अलग तरह की हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स बनाती है। इनमें कोई ये इसका एक्सेस, अगर हम इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, हमारे लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इज देयर अ लिंक और इज देयर, हाउ डू वी गेट इन टच विद सिडबी? कि क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है यहाँ पे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सबकी डिटेलिंग इस वेबिनार के बाद एक लिंक जाने वाली है सबको, जहाँ पे सबकी जरूरतें आ जाएंगी। So where do we, me, Rajendra Biniwale and some core team members who are forefronting this, हम कहाँ आके आपसे ये सारी डिस्कशंस कर सकते हैं? योगेश जी, I'll just tell here, सर के ऑफिस से मुझे ऑलरेडी बोला गया है कि जो पार्टिसिपेंट्स है, their queries we will put it in a Excel sheet and we will hand it over to his office. Dasa, please, over to you. इसमें देयर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू। एक तो डायरेक्ट मेथड है योगेश जी की, मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी हमारी सिडबी की वेबसाइट पे है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हमारी जितनी भी ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस के ब्रांच मैनेजर्स का भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये हमारी वेबसाइट पे है। तीसरी चीज है कि मैं आपके साथ में एक ईमेल आईडी अभी इसी वक्त शेयर कर सकता हूं, जिसको हम कहते हैं CCG, that is C for credit, again C for credit and G @sidbi.in। इस वेबसाइट पे अपनी क्वेरीज डालेंगे। ये हमारी सेंट्रली मॉनिटर्ड ईमेल आईडी है, आई एम सॉरी। और इसकी जैसा मैंने कहा, मेरा ईमेल आईडी भी है, और जो अगर कोई कोल्हापुर के हैं तो मेरे कोल्हापुर के ब्रांच इंचार्ज का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारी वेबसाइट पे है। कोई औरंगाबाद से हैं तो उनका है। तो इस तरह से, और अगर दूसरे स्टेट से भी, जैसा कि अभी आपने शुरू में कहा कि कुछ लोगों ने गुजरात से ज्वाइन किया, तो जो हमारे गुजरात क्षेत्र के अफसर हैं उनकी भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स हैं, तो डायरेक्टली आप हमको एक्सेस कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। ये नॉर्मल एमएसएमईज जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में है, उनके साथ में है, उनके लिए ये प्रोडक्ट है, और जहां ये स्पेसिफिकली टारगेटेड उनके लिए। और यहाँ हमारी कोशिश ये रही है अभी तक कि 48 घंटे के अंदर हम लोग इसमें सैंक्शन कर पाए हैं, और उसके 2 दिनों के अंदर, कभी कभी 1 दिन के अंदर भी, इन स्पाइट ऑफ दिस लॉकडाउन, हमने अपने प्रोसेसेस को ऐसे स्ट्रीमलाइन किया है कि हम लोग इसमें से 50% से ज्यादा में डिसबर्समेंट भी ऑलरेडी कर चुके हैं। स्कीम अभी जस्ट 1 महीने पुरानी है। कई सारी एमएसएमईज ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऑर्डर्स मिले हैं, मेडिकल के क्षेत्र में है, और उनको ऑर्डर्स मिले हैं, और उन लोगों को बैंकिंग फाइनेंस ऑलरेडी है, लिक्विडिटी का इशू है। तो अब इस ऑर्डर को पूरा कैसे करा जाए? ये ऑर्डर न सिर्फ बिजनेस तो एक पार्ट है ही है, बट उसके अलावा हमारे देश की करंट जो रिक्वायरमेंट है, अभी की जो प्रेसिंग नीड है, उसके लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्डर किसी को स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला है, किसी को आईसीएमआर से मिला है, उस तरह की संस्थाओं से मिला है। तो वहां पे हमने गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट में भी वर्किंग कैपिटल का रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट, हमारा जो कस्टमर नहीं भी है, जनरली लोग वर्क इस तरह की फैसिलिटी
जो कस्टमर्स होते हैं उन्हीं को देते हैं, बट हमने ये कहा है कि जो भी इस तरह के यूनिट्स हैं जिनके पास गवर्नमेंट ऑर्डर्स है और वो जो भी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको अगर मीट कर लेते हैं तो हमने उनको भी इस तरह की फाइनेंस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हेल्पफुल हो वो हमने उनको एक्सटेंड किया है। तो ये हमारा एक स्कीम है जिसके बारे में मैं थोड़ा समय देना चाह रहा था, क्योंकि ये स्कीम काफी अच्छा और उन तरह की यूनिट्स के लिए है, एप्लीकेबल है, जो कि इस अभी के टाइम में सब लोग तो काम शुरू भी नहीं कर सकते, बट मेडिकल इक्विपमेंट में काफी लोग हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं। So this is as far as the current anti-COVID part is concerned. जो चूंकि एसोसिएशन भी हैं और आप लीडरशिप रोल में भी हैं, तो मैं इसके अलावा एक हमारी वेबसाइट है उद्यमी मित्रा पोर्टल, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। ये वेबसाइट हम लोगों ने करीब 3 से 4 साल से ये वेबसाइट है, बट इसमें नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड इवन दोज एंटरप्रेन्योर्स के लिए जैसे कि स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में जो लोग कवर होते हैं, जिसमें कि जैसा आपको पता है SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, नए बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है। इसके अलावा जो ग्रीन फील्ड में नए एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस तो सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोसेसेस किस तरह के होंगे, किस स्टेट में किस तरह की स्कीम अवेलेबल है, कैसे बैंक को अप्रोच करना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए, कौन हमारे को ये बताएगा कि हमने बना तो लिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेकिन हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये कुछ इश्यूज हैं, कौन बताएगा कि ये कैसे हैंड होल्डिंग करा जाए। तो ये हमारी वेबसाइट है udyamimitra.in जो सिडबी ने बनाया है, और इसमें जाके हमने टाई अप किया है कंट्री में करीब 17,000 ऐसी एजेंसीज के साथ जो हैंड होल्डिंग में है। इनमें कुछ एजेंसीज गवर्नमेंट बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज है, कुछ आपके जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग अलग अलग जो पार्ट्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के जर्नी के बिफोर ही गेट्स इनटू बैंक एंड पुट्स अप अ बैंकेबल प्रपोजल, उसमें उसके जर्नी में मदद करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली इसमें एप्लीकेशन भी आप मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डाल सकते हैं, एंड एप्लीकेशन एक साथ 3-4 बैंक में भी जा सकता है। तो इट इज एन ऑटो मोड और डिजिटल लेंडिंग, जिसको हम वैसे भारी भरकम शब्द लगता है, बट है बड़ा सिंपल, और इससे भी काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी जो प्रोसेस है, चाहे नया एंटरप्रेन्योर हो चाहे पुराना, कई बार जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं वो भी इस साइट पे जाके उनको ये आइडिया लग सकता है कि हमारे स्टेट में किस तरह की क्या स्कीम्स हैं, कौन सी बैंक्स मेरे नजदीक है, कौन सी बैंक्स ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि इसके थ्रू जब एप्लीकेशन जाता है तो एक साथ 3-4 बैंक्स को हिट करता है, आपका फोन नंबर वगैरह रहता है, तो बैंक से आपको कॉल्स दिस इज वन मोर पोर्टल विच आई वुड रिक्वेस्ट कि चूंकि ललित गांधी जी भी हैं, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र के भी जो कोल्हापुर के जो उनके एसोसिएशन के मेंबर्स हों और दूसरे लोग जो आपके यहाँ पे खास के अभी मैंने देखा कई सारे छोटे एसोसिएशंस भी हैं लोकल लेवल के, तो मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन ये रहेगा, अभी तो हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, हमारी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो कम से कम अभी के समय को इस तरह की अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, या क्या क्या अवेलेबल है सिस्टम में, उस चीज की जान पहचान करने के लिए, उस चीज से समझने के लिए, उस चीज से क्या एडिशनल वैल्यू एडिशन अपने बिजनेस में हमको मिल सकता है, उसको जानने में हम लोग अगर यूज करेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा प्रोडक्टिव ये समय रहेगा। तो ये दूसरा था उद्यमी मित्रा पोर्टल, जिसका मैं आप लोगों के सामने जिक्र करना चाह रहा था। आई थिंक ऐसे बहुत सारे एसएमईज हैं जो शायद इस इंफॉर्मेशन से परे हैं, दैट उद्यमी मित्र पोर्टल ये सिडबी का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस वजह से बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स हियर वुड बी that people should visit उद्यमी पोर्टल। सर एक सवाल था, कोई एंटी कोविड हेल्थ स्कीम्स और हेल्थ केयर के दृष्टिकोण से भी कुछ किया गया है कि बिजनेसेस को बढ़ोतरा दिया जाए, जो जहाँ पे हेल्थ सिस्टम्स के लिए कुछ कर रहे हैं अगर एंटरप्रेन्योर्स, तो कुछ किया जाए उसके लिए, तो ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें अगर हम पिछले 1 महीने से बैंक्स का और गवर्नमेंट्स का रिस्पांस देखें तो 2-3 तरह
तरह से ये सपोर्ट देने की कोशिश करी गई है। एक तो 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया गया है जो इनिशियल कैश फ्लो को सपोर्ट करने में आसानी होगी कि जो ड्यूज बैंकिंग सिस्टम के इमीडिएटली मार्च में पे करने थे या अप्रैल में पे करने थे या मई में करने थे, वो अगर चाहें तो प्रोमोटर्स का उसको 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम देके उसको जून जुलाई के महीने में भेजा गया था, क्योंकि जिस समय ये दिया गया था उस समय ये था कि 2-3 महीने में शायद हम लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी कि सिचुएशन कैसा होगा। तो that is one which has been given by on the lines given directed by RBI, and हम SIDBI ने भी दिया और काफी सारे सभी बैंक्स ने भी इस इकोसिस्टम में उन्होंने दिया है। दूसरा बेनिफिट ये था कि कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जो कि सैलरीज वेजेस वगैरह को पे करने के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल और मई होगा। तो उसमें भी कई सारे बैंक्स ने अपने हिसाब से जहां जहां वर्किंग कैपिटल थी, जहां नहीं भी थी, वहां भी अडॉप्ट की एक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके वर्कआउट करके बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को दिया है। सिडबी ने भी अपने कस्टमर्स को इस लिक्विडिटी सपोर्ट के माध्यम से 20% के करीब जहां जहां पे भी डिजर्विंग थे वहां पे हमने ऑफर किया है अपने कस्टमर्स को, जिसमें काफी कस्टमर्स इस स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे। इस स्कीम का बेनिफिट जितने भी आपके भी मेंबर्स होंगे या आपके टच में भी होंगे जो लोग, उन लोगों को भी उनकी बैंक्स ने ऑफर करा होगा। हमारा सजेशन ये है कि ओवरऑल चूंकि ये लॉन्ग टर्म के फॉर्म में है और इसका जो पेमेंट होना है वो साल भर के अंदर, या कोई बैंक्स 18 महीने दे रही है, कोई 24 महीने दे रही है, हम लोग 3 साल दे रहे हैं सिडबी में मैक्सिमम। लेकिन फाइनली अपना कैश फ्लो कहाँ कैसे एडजस्ट हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जिससे कि अभी की प्रॉब्लम जो है वो बाद की हमारी कैश फ्लो में कोई इम्पिंज ना करे, बाद में हमारी कैश फ्लो इश्यूज ना बन जाए। तो उस तरह से इसको लेना चाहिए। 1 साल का भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड। और इसके पहले जैसा मैंने बताया था, एक हमारी सेफ स्कीम है जो स्पेसिफिकली एंटी कोविड फाइट के लिए हॉस्पिटल्स अगर कोविड वार्ड बनाना चाहते हैं, या एक हमारे जैसे कस्टमर हैं तो वो कंटेनमेंट एरियाज में जहाँ एंटी कोविड के पेशेंट्स को रखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे कोलैप्सिबल एरिया बना रहे हैं, आइसोलेशन चैम्बर्स बना रहे हैं। तो उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स में हैं या उस तरह के जो एसी में या जो एयर फ्लो सिस्टम्स उसमें डिजाइन करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए हमारी एक अलग से स्माइल स्कीम है जिसमें काफी कंसेशनल रेट पे भी हम लोग फंडिंग करते हैं। तो वो एक स्कीम भी सिडबी से अवेलेबल है और ये सारी स्कीम सिडबी से डायरेक्टली अवेलेबल है। इसमें कुछ उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो फॉलो करनी होगी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हमारी वेबसाइट पे भी है, और जैसा मैंने इसके पहले कहा कि हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज भी हैं। तो जो भी जानना चाहते हैं वो एक ईमेल आईडी जो है उसमें, जिसमें मेरा ईमेल आईडी भी है, मेरे ब्रांच इंचार्ज का भी है, तो उसमें भेज के क्वेरी कर सकते हैं। जनरली हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं, मैक्सिमम 24 आवर्स में जवाब आ ही जाएगा। अदरवाइज मोबाइल नंबर हम लोगों के हैं, आप टच में आ सकते हैं सभी के और डायरेक्टली कुछ सवाल पूछ सकते हैं। Perfect. Thank you जी, thank you very much. और एक important element था, और एक important I think गांधी सर आप कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ सवाल था, you had your raise your hands, so if there is any question you can ask, of course you नहीं, क्वेश्चन तो मैं बाद में पूछूंगा। अभी मीनल मोहाड़ीकर मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो महाराष्ट्र चैम्बर की एक्स प्रेसिडेंट भी है और अम्मी उद्योगिनी के नाम से महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मूवमेंट चलाती है। महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट करने के लिए उन्हें सपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग सभी में सपोर्ट करने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर हमें कभी मौका मिले टाइम स्लॉट तो उन्हें भी जरूर 100% सर, 100% सर। Wonderful. Thank you. Thank you very much for joining in. I think I have written a personal message to her on the chat also that I'm very, very happy that you are a part of this conversation and you are there. Thank you very much, Meenal ji. And I'm just trying to find your ID so that you can also speak. Because I'm not able to find question. Yeah. Okay. So, Jha Saab, thank you very much.
there is one more thing that you in our conversation आपने हमें बताया था कि digitally भी मदद कर रहे हैं सिडबी बहुत सारी MSMEs को. तो would you be able to tell me क्या है वो what is that that SIDBI is doing for digitally supporting the MSMEs? Yeah, that's a good question. Actually, जब तक ये issue COVID का नहीं आया था, digital means of credit delivery was more of it was seen as a value addition. ऐसा देखा जा रहा था कि normally अगर हमें business करना है तो conventional हमारा जो तरीका था business का, चाहे हम लोग आपस में B2B level पे customer supplier आपस में कर रहे हो या फिर बैंकर के साथ कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, हम पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शंस ज्यादा हो रहा था. और डिजिटल बैंकर्स का डिजिटल लेंडिंग वाज something which was being offered only at a certain level by some banks. Now with this crisis it has been made mandatory. तो पिछले डेढ़ महीने से तो हम लोग अपने लॉकडाउन की वजह से ना कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स यानी आप लोग, ना अपने फैक्ट्री में ज्यादा जा पा रहे थे और ना हम लोग विजिट करके किसी चीज को पता कर पा रहे थे, जो कि जनरली बैंकर्स करते हैं कि बैंकर्स जाते हैं विजिट पे, फेस टू फेस डिस्कशंस करते हैं. सो वी हैड टू फाइंड आउट सर्टेन अल्टरनेटिव्स व्हिच कुड फिट इन. तो नेचुरली जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तब भी अगर चूंकि इसका सॉल्यूशन इस वक्त निकाला गया है और नॉर्मल जो सेफगार्ड्स हैं उसके साथ में निकाला गया है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोगों ने 200 केसेस पिछले एक महीने में करीब करे हैं ऑल इंडिया में, जिनमें 100-125 के करीब हमने डिसबर्स भी करे. तो नेचुरली उसमें सारे वो सेफगार्ड्स रख के करे गए हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू द एक्सटेंट दैट इज पॉसिबल. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. The second part of it is कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटली ही एडमिनिस्टर होते हैं, जैसे 59 मिनट्स PSB लोन और 59 मिनट्स का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, where we have used various inputs of existing customers, existing businesses, जैसे कि उनका IT रिटर्न्स जो उन्होंने जमा किया है, या उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, या उनके GST रिटर्न्स हैं, वो हमने डायरेक्टली, या सिविल रिकॉर्ड्स है तो उनको डायरेक्टली सिस्टम से फेच करके, और फिर वी हैव made an attempt to give them an online approval which has been done for the last 2 years. Okay. And काफी सारे लोन्स इसमें सैंक्शन इन प्रिंसिपली पहले हुए और बाद में विद इन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लिए जा चुके थे डिजिटली विदाउट anybody moving out from their home. So this has been in practice and this is being used by many banks, both private banks also. और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शेयर करते हुए आप लोगों के साथ कि प्राइवेट बैंक्स भी इस मॉडल को यूज कर रहे हैं. और आज के उपलक्ष्य में तो, आज के संदर्भ में तो इट इज क्वाइट बेनिफिशियल. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और बैंकिंग डिसीजन या क्रेडिट डिसीजन आपको इन प्रिंसिपली ऑलरेडी पता है. तो जब आपको लॉकडाउन खत्म होना होगा और जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, उस समय आपको ये पता होगा कि कौन सी वो 2 या 3 बैंक्स हैं जिनके पास से मुझे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला हुआ है और कितने तक का मिला हुआ है. सो दैट्स अ गुड डेवलपमेंट दैट वी आर हैविंग. इन एडिशन टू दैट एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें भी ऑनलाइन वर्किंग कैपिटल के हुंडीज या बिल्स की डिस्काउंटिंग होती है. तो ये 2-3 माध्यम है जहां डिजिटली लेंडिंग का अपॉर्चुनिटी है जो SMEs उठा सकते हैं. ओके. और कुछ सवाल जो आ रहे हैं, एक बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल आया हुआ है कि डॉक्टर्स के लिए ऐसी कोई स्कीम है जहां जिस वजह से वो अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई स्कीम है जहां पे वो हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसके लिए कुछ कर सकते हैं? सो दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट दैट वी वांटेड टू चेक. सो ऐसा कुछ है सर? Yeah, actually that's a good question. Not only in the current perspective, but India as a country, we believe that healthcare में काफी investment की जरूरत है. तो उसमें SME जो investment करना चाहेगा, SIDBI is considering investment in medical infrastructure setup within that MSME space as a thrust area. Right. तो उसके लिए जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो एक तो जो कोविड से रिलेटेड हैं वो तो है ही,
अदर देन कोविड ऑल्सो, जो लोग अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर्स हैं, उनका नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम को थोड़ा और ज्यादा करना है, कुछ मशीन्स लेनी है, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, या कोई नए स्पेशलिटीज ऐड करने हैं उसके अंदर में, तो उसके लिए भी जैसा मैंने कहा, एट क्वाइट कॉम्पिटिटिव रेट्स डायरेक्ट फंडिंग सिडबी से अवेलेबल है। तो उसमें वो चाहे एक पर्टिकुलर मशीन के लिए लेना चाहे, उसी मशीन की ईएमआई बांध के भी वो आगे चल सकते हैं उससे। और अगर मशीन की ईएमआई ना हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोन्स अवेलेबल है। ओके, हमारे पास काफी जनरल सवाल आ रहे हैं, बट आई थिंक मेरा सबसे अनुरोध ये है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इसमें, वो स्पेसिफिक सवाल पूछे। जैसे ये डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक सवाल था, एनी स्कीम फॉर ट्रेडर्स और यार एनी प्रोविजन फॉर पावर सेक्टर, ये तो बड़ा जनरल हो गया। अगर झांसा यहाँ पे और आप कुछ सटीक सवाल पूछना चाहते हो, आप प्लीज उस चैट बॉक्स पे रखिए। I would be more than happy to ask this question to him. और एक चीज जो जानना चाहता हूँ, वो ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म जो सिडबी ने बनाया हुआ है, वो क्या है? What is that ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म? No, actually, trades is trade receivable discounting. This is a concept which RBI had come. Okay. RBI ने ये कहा कि चूंकि SMEs को सप्लाई करती हैं बड़ी कस्टमर्स को, बड़े कस्टमर्स काफी दिनों तक उनको पेमेंट नहीं दे पाते, चाहे अपने उनके बिजनेस इश्यूज हों या फिर वो उसको लो ऑन प्रायोरिटी रख रहे हों, तो उस संदर्भ में ये सोचा गया कि अगर ये 1-to-1 ट्रांजैक्शन ना रह के, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहां पे कि कोई बैंक किसी भी का भी रिसीवेबल फंड कर पाए। जैसे अगर कोई एक बड़ी कंपनी है, एक एमएसएमई एक बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रही है कंपोनेंट्स, और उसके अगेंस्ट में वो लोग बिल अपना देते हैं बड़ी कंपनी को, बड़ी कंपनी उसको या तो अपने फंड से पे कर सकती है या फिर उसको डिस्काउंट करा सकती है अपने बैंकर से। अब उस बैंकर का उस कस्टमर के साथ में जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहता है, तो इसलिए चाहे बाहर मार्केट में इंटरेस्ट रेट की कोई भी परिस्थिति हो, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ही हमेशा मिलेगा इस बड़े परचेजर को भी और इसलिए उसके एमएसएमई सप्लायर को भी। तो ये सोचा गया था कि अगर एमएसएमई और बड़े परचेजर के ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, और इस जेन्युइनिटी को अगर हम कोई आईटी प्लेटफॉर्म पे ले आए जहां पे एक ही बैंकर, जो उसका बैंकर है वो नहीं, दूसरे बैंकर्स भी देख पाए ट्रांजैक्शन को, और अगर उनको कंफर्टेबल लगे तो वो उस पर बिड कर पाए, उस सूरत में इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट बैंक्स विल हैव डिफरेंट लिक्विडिटी। हर बैंक की अलग अलग लिक्विडिटी होती है, जैसे आपके भी एमएसएमई बिजनेसेस हैं या एसोसिएशंस हैं, हर किसी की लिक्विडिटी पोजीशन अलग है। किसी की लिक्विडिटी 2 महीने तक चलेगी, किसी की 1 महीने तक, किसी की 15 दिन तक, तो आज सबके पास लिक्विडिटी अलग अलग है। इसी तरह बैंक्स में भी होता है। तो जो बिडिंग सिस्टम अगर आ जाएगा, तो उस बिडिंग सिस्टम से एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सारे ये इनवॉइसेस ऑनलाइन हो जाएंगे सिस्टम पे, और दूसरे बैंक भी डिपेंडिंग ऑन देयर ओन लिक्विडिटी पोजीशन दे विल बी रेडी टू डिस्काउंट द बिल्स, और इस वजह से एमएसएमई उस परचेजर को और परचेजर के थ्रू एमएसएमई को लोअर रेट का फायदा हो सकता है। इसमें सिडबी, तो ये आरबीआई की सोच थी। तो इसके साथ में 3-4 इस तरह के आज की डेट में फंक्शनल चार हैं, जिसमें एक सिडबी की भी कंपनी है जिसको हम रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, जो सिडबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ और दूसरे 2-3 बैंक्स के साथ मिलके इसको बनाया है, जहाँ करीब 650-700 के करीब एमएसएमईज हैं। और हम चाहते हैं कि और भी आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं उन एमएसएमईज को जो बड़े कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, कि अपने कस्टमर्स को कन्विंस करें कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे एक तो ट्रांसपेरेंसी, दूसरी एक बार ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इट कैन नॉट क्रॉस 45 डेज। जब तक ये ऑनलाइन सिस्टम में नहीं रहता, ये 45 डेज से ज्यादा भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म में आने के बाद 45 डेज क्रॉस नहीं कर पाएगा, और बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट रेट जैसा बताया वो भी उनको अवेलेबल हो सकता है। Wonderful. So that is the trade receivable discounting system. As a curator, as a moderator of this small
now it's a big event. My humble request to everybody here is that there are two kind of people. I'm sorry, my education doesn't stop me from talking right now. There are two kind of people in any society, one on the problem side and one on the solution side. My humble request to all my friends who are there in this room is, let us try focusing on the solution side. Let us not use statements on chat boxes which say कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, support नहीं करते. My humble request to you is, look at the positive side of it, look at the white spot, and let's work on the white spot rather than cribbing and crying about it and trying to feel like a victim, right? So let's focus on what is supposed to be done. And as businessmen, I'm sure all of us will agree that you got to do what you're supposed to do rather than cribbing and crying about it. I hope, with all my humility and respect for everybody in this room, request you to really ask possibility questions, then making statements. So, because this is not a cribbing crying session, very, very honest. This, as I said, the movement is focusing on inspiring people, okay, to do what they can do, and rather than focusing on what you cannot do. Okay, so my humble request to everybody is focus on what we can do. So Jha Sahab, over to you. I have a question that has come up which says, any specific schemes that you can talk about reliable energies or renewable energy support schemes that are there? Yeah, that's an interesting question, Dr. Pawar, because it serves two purposes. I'm happy that this question has been asked, and this renewable energy works for everybody across the industry. You may be in any industry, but you would require power consumption, and renewable energy as a source does help us to reduce our power costs, and sometimes these reductions can be significant over a longer period of time. We do have a scheme like most of the banks are having. We have tried to simplify the scheme. We say we name it as the name as STAR. So it's a STAR scheme wherein we are saying that anybody who wants to put up a rooftop project for solar power will be able to take assistance under this scheme, and the loan amount can vary from 10 lakhs to 250 lakhs, and the wattage can be 25 kilowatts to 500 kilowatts. We've tried to make the scheme pretty parameterized in the sense that we do have we have liaisoned with most of the suppliers, and we are aware about the per kilowatt cost and what would a 5 kilowatt or a 7 kilowatt would cost, and accordingly we are saying that even 100% of the loan is available in such cases. The interest rates would vary in the range of around 9% onwards, depending upon the rating. The interest rates in the entire banking system are based on the ratings. The good thing is, because 100% finance is available, 25% of it would be kept in the form of fixed deposits on which we would be paying interest. So it's like the interest would be applicable on majorly on the 75% of the loan which is there. Okay. The funding is directly made to the supplier who is supplying this, and this is available for both standalone as well as the grid connected part. Now, why this is interesting is in earlier days, even just 1 year back or 2 years back, if you had to go in for this kind of a project, you would have to prepare a full project report. You would have to convince SIDBI, just like any other bank, that this is a viable proposal. But nowadays, because of the direct benefits which are available and which have been calculated by the bank, SIDBI itself has done this exercise. So depending upon the eligibility criteria, once eligibility criteria is fixed, the delivery period is not more than 1 week to 10 days from the application to the disbursement part of it. And why is it interesting? It's interesting because in the post-COVID stage, one of the most important criteria, one of the most important requirements that will come up, as we are all aware of, is reducing the costs, because demands will take some time before they reach the pre-COVID period. Until that time, we all,
that is, I consider the MSMEs as colleagues because we are also working in the same space. You are also working in the same space. Okay. So the requirements, the market requirements will take some time to pick up. Till that time, we'll have to put our house in order. So we'll have to reduce the costs. And this particular deployment of renewable sources, it is an important means to reduce your cost. And Okay. therefore, I feel that most of the SMEs which are looking at slightly longer term and which are trying to reduce, which are bothered by the costs which are going to go up, but only now start. Okay. हाँ, तो उसमें अगर हम लोग इस स्कीम को अगर यूज कर पाएंगे, जिसमें कि डायरेक्ट पैरामीटराइज्ड स्कीम है, यानी कि जो कॉस्ट होगा पर किलोवाट का या उस पैनल का कॉस्ट होगा, वो आपको कोटेशन मिलेगा, वो हमें भी पता है उससे कितनी सेविंग्स होगी, आपका अभी तक का खर्चा कितना हुआ और आगे जो खर्चा होगा उसी लाइन पे इसकी रिपेमेंट शेड्यूल भी ड्रॉ की जाएगी, जो 4 या 5 साल का लोन होगा वो। Okay. और इसमें किलोवाटेज भी जो होगा वो 25 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का है, तो एक अच्छा सेविंग हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे। स्पेशली कोल्हापुर में, जैसे गांधी जी भी बताएंगे, तो काफी सारे कस्टमर्स वहां पे जो हैं, जो जिनके पास फर्नेसिस हैं या जो उस तरह के हेवी एनर्जी कंजम्पशन वाले इंडस्ट्रीज में हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उनके पास बड़े लैंड एरियाज भी हैं, बड़े दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू पुट रूफटॉप। तो मेरा रिक्वेस्ट ललित गांधी जी के माध्यम से ये रहेगा कि अगर कभी हमें या हमारे कोल्हापुर में किस ब्रांच को कभी मौका देंगे, तो हम लोग इसमें 1-to-1 भी लोगों से हम लोग बात कर पाएंगे। और दूसरी जगह पे भी, नॉट ओनली देयर, औरंगाबाद में है, कई जगह पे है जहाँ हेवी एनर्जी कंजम्पशन वाली जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए खास फायदेमंद रहेगा। ये मेरा कहने का मतलब। Okay. Wonderful, very nice. Thank you very much, Jha Sahab. There is, I think these are, as we are coming to the closer of the direct questions that I have, we will get on to the participant questions now. मेरे पास already कुछ questions हैं जो question and Q&A sentence पे आए हुए हैं. Is there a subsidy on solar loans? ये बड़ा specific सवाल है, हाँ या ना में इसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। देखिए, जहां तक सिडबी का सवाल है, सिडबी के माध्यम से कोई सब्सिडी नहीं, जो राज्य सरकार की सब्सिडीज हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। सिडबी का इंटेंशन है आपको लोन एक पैरामीटराइज्ड में जल्दी से दे दें आपको, और जितना सुविधाजनक टर्म्स में आप उसको पे कर पाए उस माध्यम से पे कर पाए। ओके। दूसरा एक सवाल है, ड्रग्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, नेहा आपके जी का सवाल है ये, ड्रग्स के रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नई चीजें हैं जो सिडबी आगे ला रही है, ऐसी कुछ चीजें हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में हो रहा है, जहाँ पे वो लोन के लायक हो सकती हैं, जैसे कि जब भी लोन दिया जाता है ये देखा जाता है कि लोन लौटाने का जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो है या नहीं, यानी कैश फ्लोज होने चाहिए पॉजिटिव। तो अगर वैसी कंपनी करना चाह रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो लोन के माध्यम से, जैसा पहले हमने बात किया हेल्थ केयर के लिए जो हमारा कंसेशनल लोन है या सेफ का जो लोन है, तो उसके अंदर वो कवर हो सकते हैं। लेकिन अगर ओनली प्लेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई कैश फ्लो अभी नहीं है, वो स्टार्टअप के कैटेगरी में आते हैं, तो फिर उनके लिए एक अलग माध्यम से हो सकता है। वो नॉर्मल लोन के माध्यम से तो नहीं हो पाएगा, वो कोई पीई फंडिंग या वेंचर फंडिंग के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो पाएगा, जिसके लिए भी हमारे पास एक अलग से csas@sidbi.in करके स्टार्टअप का एक पोर्टल है, तो वहां पे भी आगे इसके बारे में पता कर सकते हैं जो प्लेन स्टार्टअप्स है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। एनी स्कीम्स फॉर, जैसे एक इंडस्ट्री जो बहुत ही ज्यादा हिट हुई है वो हमारी टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री है, और इनके लिए कोई स्पेशल स्कीम्स हैं जो हमारे होटलियर्स, हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अच्छे लोग हैं उनके लिए कुछ हो सके? बिकॉज टूरिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, और क्या भारत सरकार या सिडबी उसके ऊपर कुछ काम कर रही है? That's an interesting question. Actually, आपके माध्यम से अगर इस तरह से अगर आप कोई एक्सरसाइज कर पाए, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड
ज्यादातर मूवमेंट से रिलेटेड है, जो कि वहाँ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है अभी फिलहाल। True. तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की रिक्वायरमेंट अभी सामने आई है। तो जरूरत ये हो सकती है कि आगे जब ये खुले तो उस समय किस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आप इंडस्ट्री के माध्यम से इकट्ठा करके अगर उसको आगे डिस्कस करेंगे तब शायद उसमें और ज्यादा काम हो पाएगा। आज की डेट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग के इर्द गिर्द है। तो आपका उस सवाल उस हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें थोड़ा काम करने की जरूरत है अभी। ट्रू। अभी अभी और एक सवाल बड़े अच्छा सवाल आया हुआ है इज जो वो कह रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री, अभी ये सारी आर्टिसन इंडस्ट्री में चली जाती है, ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्राफ्टिंग, इनके लिए कोई स्पेशल स्कीम्स हैं जो सिडबी अभी दे रही है? देखिए पवार साहब, आपके माध्यम से मैं ये संदेशा देना चाह रहा था सभी एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में। अब जो मेन, चाहे सिडबी हो चाहे कोई भी बैंक हो, अब जो मेन क्राइटेरिया देखा जाता है वो देखा जाता है एंटरप्रेन्योर और बिजनेस की क्वालिटी। तो आप प्लीज कौन सी इंडस्ट्री में है उसके लिए स्पेसिफिक है कि नहीं उसकी चिंता मत करिए। मेक योर बिजनेस अट्रैक्टिव एंड जैसे मैंने अभी कहा कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में हम सबको अपने कस्टमर्स का, अपने कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सब में सब आते हैं, बैंक्स भी आते हैं, सिडबी भी आता है। तो कोई भी अच्छा कस्टमर या अच्छा एंटरप्रेन्योर को या अच्छे बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहेगा। सो वी विल डेफिनेटली, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको आप हमारे साथ रहें, उसकी हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। और एक सवाल है, ये थोड़ा तीखा है बट फैक्चुअल है। सिडबी इज नॉट डिसबर्सिंग लोन डायरेक्टली टू एमएसएमई, इंस्टेड through PSU commercial banks, thereby at 2% commission interest to nationalized bank is saved. So is this a process or this is how it is? Okay, so that's a good question. I'll just clarify on this. ललित गांधी जी ने भी इस बात में स्टार्टिंग में कहा था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सिडबी जो शुरू किया था जब 1990 में सिडबी ने, उस समय में ये रिफाइनेंसिंग एजेंसी ब्रॉडली था, मतलब वो बैंकों के माध्यम से ही फंडिंग चैनलाइज करता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली फंडिंग करना भी शुरू किया, और आज की डेट में मुझे ये बताते हुए बड़ा खुशी भी हो रहा है और आप लोगों से शेयर भी करना चाहता हूं मैं कि हम लोगों का जो डायरेक्ट फंडिंग है, जो डायरेक्ट एमएसएमईज को हम लोग करते हैं, उसमें 10,000 करोड़ से के आसपास हमारी ऑल इंडिया की फंडिंग है। तो ये कहना आज की डेट में सही नहीं है कि सिडबी बैंकों के थ्रू ही डायरेक्टली हमेशा फंड करता है। हम डायरेक्टली भी, जो भी मैंने स्कीम्स की बात कही, चाहे सेफ हो जो कोविड के लिए है, चाहे हेल्थ केयर की एक स्कीम जो कंसेशनल मैंने बताया, चाहे रूफटॉप सोलर की स्कीम हो, चाहे ट्रेडर्स के लिए भी एक स्कीम है जो मेरे ख्याल से ललित गांधी जी भी के लिए भी अट्रैक्टिव हो सकता है, जिसमें ट्रेडर्स का भी जो स्टॉक है गांधी जी, वो उनके स्टॉक्स के ऊपर में हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें सीजीटीएमएससी कवर, या फिर अगर किराए की जगह पे है तो ये सारी फंडिंग हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ये बैंक्स के थ्रू नहीं हो रहा है। दिस एंटायर फंडिंग वी आर आवरसेल्व्स डायरेक्टली डूइंग इट। चूंकि सिडबी का रोल एपेक्स इंस्टीट्यूशन का था, और ये नहीं सोचा गया था कि पहले, अभी तो बैंक्स की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि कुछ बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है, पहले तो 27-28 बैंक्स थे, तो ये सोचा नहीं गया था कभी कि सिडबी उन बैंक्स के साथ में compete करेगा। आज भी वो सोच नहीं है। सोच ये है कि सिडबी गैप्स आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए कुछ निश प्रोडक्ट्स बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट भी करेगा मार्केट में, जिससे कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को भरोसा हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरह से दिया जा सकता है, और फिर उसको करे। तो ये 2% जो सबवेंशन है वो गवर्नमेंट से आता है और कस्टमर को जाता है। इसमें सिडबी के पास में कोई फंडिंग नहीं रुकती है, और सिडबी डायरेक्टली भी फंड करता है, जहाँ डायरेक्ट रिस्क लेता है। वहां पे एनपीएस होते हैं तो डायरेक्ट एनपीएस होते हैं, हम ही रिकवर करते हैं उसमें। बट आई एम हैप्पी टू शेयर कि हमारे एनपीएस ज्यादा नहीं होते, क्योंकि हमारा बिजनेस भी थोड़ा फोकस्ड बिजनेस है। सो जिनको भी ऐसा लगता है वो जरूर, मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार सिडबी के ऑफिस को अप्रोच करें। हमें भी
हमें भी उसमें बिजनेस डेवलपमेंट करने का एक मौका मिलेगा और आपको भी बताने का मौका मिलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ साहब कोई एक्सपोर्ट्स के लिए स्कीम्स हैं हमारे पास, जैसे जैसे हमारे विवेक बंसल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आई हैव एन एलसी एट साइट ऑफ फॉर एक्सपोर्ट टू अ कंट्री, हाउ डू वी गेट वर्किंग कैपिटल फॉर दैट, वर्किंग कैपिटल लोन फॉर दैट? हम जैसे टर्म लोन देते हैं वैसे वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज भी देते हैं। तो अगर एलसी हो या लोकल भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग हमारा टाई अप है 3 बैंक्स के साथ में, सिटी यूनियन, आईडीबीआई और यस बैंक के साथ। उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग वर्किंग कैपिटल भी देते हैं। तो आप जो भी मतलब आपकी नियर ब्रांच हो या फिर मेरा नंबर है, तो अगर आप चाहें तो केस टू केस बेसिस वाली बात चीजें तो हम लोग उसमें बात कर सकते हैं। इस माध्यम से तो क्या फैसिलिटी सिडबी में अवेलेबल है वो हम लोग सबको जानकारी दे सकते हैं। तो यस, वर्किंग कैपिटल कैन बी डन, एलसीज यस दे कैन बी ओपन बाय सिडबी। Wonderful, very nice. So there are questions that are coming up, and I'm very thankful that people are responding, asking questions. Exactly after say after in next 2 to 3 hours, whoever जो जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे हैं जो ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उनको एक ईमेल आ जाएगा, because you're and we are sending you a form. उस फॉर्म में आपकी सारी चीजें डाल दीजिए जो आप जानना चाहते हैं, ताकि हम कोलेट करके जहां साहब के पास भेज दें और वो हमें मदद करें कि जहां जहां पे वो मदद कर सकते हैं वो ग्रीन एरियाज मार्क करके दे देंगे। एंड वी विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू एंड टेल यू ओके दीज आर द थिंग्स एंड यू कैन गेट इन टच। आई थिंक अगर हम एक कोलेटिवली काम करें तो आसानी उनके लिए भी होगी और एक स्ट्रक्चर में हम उनकी तरफ जा पाएंगे, ताकि अगर कुछ नई चीजें भी करनी है तो I'm sure Sidbi and Mr. Jha would be more excited to help us in doing that, because as rightly mentioned, everybody wants right customers, right? So is Sidbi. Am I correct, Mr. Jha? Yeah, that's it. That's correct. Right. But wonderful. Thank you very much. So you will receive those that email. My humble request here is please mark your emails on the chat boxes now as we are moving forward. I will take last 2 questions which people have asked. Give me a moment. There are 2 open questions. Food processing और packaging, उनके लिए कोई स्कीम्स हैं या आप फंड कर सकते हैं? I think there are 2 major questions, sir. Food packaging, that is one. Second is IT companies, and third is digital companies. तो जैसे अभी डिजिटल ये is a very जिसको कहते हैं एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ 20 बिलियन बिजनेस अक्रॉस ग्लोब बाय 2030. बट जिस तरीके का ये कोविड का सिनारियो हो गया है, आई एम श्योर दैट वो 2030 तक नहीं 2025 तक ही हो जाएगी. सो government also, government agencies, typically all the PSU banks do not support, or rather I don't know whether they don't support, they don't want to support, or they don't understand the digital business, जिस वजह से कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता डिजिटल बिजनेसेस को. सो क्या सिडबी इसमें कुछ फोरफ्रंट करने वाली है, देखने वाली है? व्हाट इज इट? Yeah, so as far as the first question of food processing, yes, we are doing that. In fact, we are also the nodal agency for the subsidy from the food processing ministry for MSMEs. So we are into that business. Software कई सारी हमारे customers यहाँ पुणे में भी हैं, बैंगलोर, दिल्ली हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स में जिनको ऑर्डर्स एमएसएमईज को मिला है, जो वहाँ पे एग्जीक्यूट करती है विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स. उनको भी हमने फंडिंग की है बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट. As far as digital business is concerned, digital businesses which don't have any assets, तो उनको अगर कैश फ्लोज है तो उन कैश फ्लोज के बेसिस पे हम फंडिंग करते हैं. कई सारी कमर्शियल बैंक्स भी करती है, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक्स नहीं करती हैं. लॉट ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर डूइंग द कैश फ्लो बेस्ड बिजनेसेस. जैसे कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारा O&M कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है
स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे बीकेसी है तो बीकेसी में काफी सारे बैंक्स हैं, उनका जो O&M कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो एक तरह से एसेट बेस उनका भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनके पास कैश फ्लो होता है। तो इस तरह की बिजनेसेस अब बैंक्स फंड करने लगी हैं, सब तरह की बैंक्स करती हैं, पब्लिक सेक्टर भी करती है, प्राइवेट भी करती है। मेन इंपॉर्टेंट इस तरह के बिजनेसेस में बैंक ये देखना चाहती है, कोई भी बैंक, चाहे सिडबी हो चाहे कोई और बैंक हो, वो ये देखना चाहती है कि रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में कैसा है, कैश फ्लो की स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि बैंक जो फंडिंग करेगा वो कैश फ्लो के बेसिस पे करेगा, तो कैश फ्लो की स्ट्रेंथ कैसी है, अगर हम कन्विंस कर पाते हैं बैंकर को तो आई एम श्योर फंडिंग विल बी अवेलेबल। should not be a problem even for the new age businesses जिसको हम कह रहे हैं नए new age businesses हैं, उन्हें भी support मिल सकता है. Wonderful. In the same breath, while we are now coming to the closer, I will take these questions as well, Amarnath ji. Thank you. Let me also tell you what is Inspiring India Movement. Inspiring India Movement is a series of webinars that will happen over a period of time for the next 1 year. For the next 1 year, there will be 4 kind of people that you will see in Inspiring India Movement: policymakers, society influencers, business leaders, and spiritual leaders. Okay, I'll repeat: policymakers, policy influencers, then influential leaders, business leaders, and spiritual leaders. My humble request here is this is a cause for a country that we feel is important, and every 4th or 5th webinar we will be asking for a simple donation from people, maybe around 700 rupees, to keep this movement alive. Whoever wants to be a part of this, you may want to be generous enough to donate that money, so that there is a team who is working at only, they're putting their heart and soul into it. But yes, there are certain things that will require money. We would want you to support. The details will also come to you in an email. Whenever you feel that, okay, you would want to contribute it and get this movement a little, because as I said, this is a private movement. We have not taken any support from any government, from the government, but I'm sure as we move forward, people will support us, government will support us in taking this very a genuine agenda of inspiring the entrepreneurs to take right decisions, make better decisions, create better strategies, and move forward with support of a lot of people. So I have a last question, Jha Sahab, that I'm going to ask you. And the question is there any we do not have CC or term outstanding. All has been repaid, but all due to the sudden, we need working capital. And how quick can we get that? Because there was no, which means that the banking is good. How quick? So what is the timeline that SIDBI can, disperse loans? That's an interesting question. But at the same time, I would suggest that, can I know the name of the person who has asked that question? Okay, that is that I think it says anonymous attendee. Anyways. Yeah, maybe he's in the मेरा ये कहना था कि ये Amit Tadani is his name. Sorry, Ajit Tadani ji. मेरा ये सजेशन था कि इतना देर तक ये सवाल पूछने के लिए, और there is a saying, right? The proof of the pudding is in its eating. तो आपको वेट करना नहीं चाहिए था. मैंने जैसे पहले कहा था, वेबसाइट पे हम लोगों के सबके नंबर्स हैं, तो मैं इधर हूँ वेबिनार में, बाकी लोग तो ऑफिस में हैं, आपको उनसे पूछ के उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी. What an answer. Very good, you would have got the reply and you would have become you would have canvassed for SIDBI also. So actually I lost an opportunity. No, but the best part is, I'm sure working with so many of entrepreneurs, Jha Sahab, there is a new coin. I was talking to the chairman of Praj Industries, Pramod ji, and we do have great relationships with him. He has coined a word in his company called intrapreneurs. So I'm so happy that SIDBI also has one, and I had the opportunity to talk to such a dynamic individual who is saying, why are you waiting? Take up an action and move forward. So thank you very much for inspiring Ajit ji. Ajit ji, don't stop now. Immediately after this webinar, write to Mr. Jha or write to anybody in SIDBI and see what is the solution that is coming up. Yeah, wherever you are based at, you would have a branch near to you, a branch of SIDBI.
yeah, so you can speak to them, and I'm sure if it is a bankable proposal, we would not leave that opportunity. So please speak to them. Wonderful. 2 मिनट और अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो Please, sir. Please. गॅरेज आहे का बघून नाही चालू आहे का बघ छत्रपती Okay. ईव्हीएस Mr. Amol, TVS Amol Chhatrapati. Bagulde. Mr. Amol Bagulde, please mute करा. Thank you. सिडबी एक पोर्टल भी अभी बना रहा है, आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा, जहां अलग अलग स्टेट्स अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो स्कीम्स आ रही हैं एंटी कोविड फाइट के लिए, पोस्ट कोविड कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होगी, वो हम लोग टाई अप कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ में, एंड वी आर कमिंग विथ ए पोर्टल. That portal also I would request all your members, and I would also make it a point that once it is operational, I'll share the link with Please do, sir. Please do. with you, so that the entrepreneurs can go there and जो भी जिस स्टेट से हैं या जहाँ पे भी क्या फैसिलिटीज मिल रही है और या कौन सी तरह की स्कीम्स हैं जो उनके लिए लागू हो सकती है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द फैसिलिटीज लाइक किसी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर उनको यूज करना है, लाइसेंस पुराने वाले का चला गया है तो यहाँ पे ये अवेलेबल होगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज हैं उनको अपने आप से करने की जरूरत नहीं है, ये जो पोर्टल होगा उस पे फ्री अवेलेबल होगा फॉर SMEs, so they can do that. So that's one more thing. And second, as I had initially mentioned, I would request all your members and जो भी senior members हैं, खास के जो एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सीनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जरूर इस चीज को एक बार खुद उद्यमी मित्रा पोर्टल देखें, और वो अगर समझाएंगे नए एंटरप्रेन्योर्स को तो वो ज्यादा बेटर समझा पाएंगे कि क्या फायदा उसमें. हम तो एक मतलब एक अलग हमारा पर्सपेक्टिव होता है बताने का, लेकिन अगर आप लोग आपस में डिस्कस करके बताएंगे तो आई एम श्योर कि उसके बहुत सारे फायदे हमें लगता है कि आप लोगों तक पहुंच पाएगा. सो that's what I just wanted to share with all of you. Thank you so much. Thank you very much for giving us this opportunity. Sir, I would also want Meenal ji to have a last word, because we are fortunate to have you here, Meenal ji. My request, I'm going to unmute you. What do you feel about this movement that we are starting? You've heard us. आपने सुना है हमें अभी. I think you have been patiently listening to us for such a long time. Could you please tell us a few words about your encouragement for all the entrepreneurs who are there, and certain things that you are doing for women entrepreneurs also. So I'm going to unmute you, and you may want to have a little word, Meenal ji, as we are coming to the closure of this wonderful webinar. I think we are missing Meenal ji. Now, I think... Can we give 1 minute to Shubhangi madam? She may explain something for women entrepreneurs. Yes. Shubhangi madam also there. Yes, Shubhangi madam, I have unmuted you. You can go ahead and speak. Namaste, Mr. Jahaji. Thank you very much. SIDBI has helped the entrepreneurs all the time. And what I will say here about women entrepreneurs, many women entrepreneurs I am working with, they were doing their businesses with their own funds. But now after COVID, the situation is improved for the business expanding. It's an opportunity. And that's why these women want to, like, now they're thinking of central kitchen or free food packaging and all. So what I wanted to ask, that these ladies who are already given jobs to 10 more ladies or maybe more than that, what kind of schemes you have, and these ladies will need that idea of making a project and report and load also. So where can, I mean, SIDBI has got anything specific? That's my question. And thank you, your inspirational thing, because it's a need of the hour. Thank you. Thank you. Thank you.
Jasa, would you want to answer Yeah, that? I'll just quickly respond to ma'am. Yes. Ma'am, this Udyami Mitra portal is a good portal. As you said, our support is required to Yes. understand the business and to put it in a form where it can be put across to a banker, uh, what is called as a bankable form. तो ये जो साइट है ये काफी मदद करेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन से स्टेट में क्या स्कीम्स हैं, सब्सिडी स्कीम्स क्या हैं, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसका, या बैंकर कोई प्रोजेक्ट देखेगा तो वो ये देखेगा कि एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस और जो प्रोजेक्ट वो करना चाहते हैं उन दोनों में क्या समन्वय है कस्टमर से रिलेटेड. तो ये एक फॉर्मेटेड फॉर्म में उस वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट था कि अगर इस चीज को थोड़ा एसोसिएशन लेवल पे भी अगर जो लोग आप लोग एक्टिव हैं वो अगर थोड़ा एक बार देख के, और जरूरत अगर पड़ेगी तो आपके आसपास में जो भी हमारे ऑफिसेज हैं हम उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. दे कैन स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स विथ यू, गो थ्रू दैट वेबसाइट, या जो तो मतलब उस तरह की रिसोर्स भी अगर आप जब भी चाहेंगे तो वो अवेलेबल हम लोग 2-3 दिन के उसमें कर सकते हैं. तो आप So ideally we association की can तरफ ideally we can conduct a small webinar on Udyog Mitram only. हाँ कर सकते हैं. Yes. And especially me being a vice president of Maharashtra Chamber of Commerce and Ami Udyogini Navi Mumbai head, so we have got so many women who want to know about this, so we can have a session on this also. Perfect. Yes, yes, we can definitely. We can definitely. Shubhangi ji, Thank in you fact, whenever MCCI also has it, please call us. We also have lot of women entrepreneurs who would want to join. Sure, great. Right? Thank you. Thank you very Mr. much. Gandhi is our senior vice president. The goal is very clear. Everybody needs to inspire and look at the positive aspects of life than anything else. That's the prime goal. So thank you very much, Jha Saab. Thank you very much, Shubhangi ji. Meenal ji, thank you very much. Lalit ji, आपण आणखीन भरपूर काम करायचंय. तुम्ही संधी दिलीत याच्याबद्दल धन्यवाद. आणि शुभांगी जी, thank you very much. Jha Saab, thank you so much. Thank you. Thank you. You've been Thank you. a great, giver. You have shared a lot of things. बाकी सबके लिए एक ईमेल आ जाएगी जिसमें एक कुछ सवाल होंगे, उसको सवालों के जवाब देने ताकि पूरा डेटा और हम हमारे कुछ मेंबर्स के साथ जहाँ साहब को और थोड़ी तकलीफ दें, फाइंड आउट गुड कस्टमर्स, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. Thank you Yogesh ji, thank you very much. Thank you Rajendra ji. And don't Thank forget you very that we much. can really come out as an emerging economy that we are and we deserve. So thank you very much. Bye bye everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. End करत नाही meeting. Sir, please kindly end meeting from your end. Dr. Yogesh sir, kindly end the meeting from your end. Seems he has left. Leave meeting.